بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آج کل اس سے بڑی خبر کیا ہے کہ طوفان رخ کر رہا ہے پاکستان کے ساحلی علاقوں کا۔ ابھی بائپر جو ہے یا بیپر جو ہے، اس پر بھی ایک بحث چل رہی ہے۔ بیپور جو ہے کیونکہ اس طوفان کا نام جو ہے وہ بنگالی میں لیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو ذرا سمجھاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ یہ طوفان ہے کہاں کہاں ہٹ کرے گا اور ہم کہاں سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال پر اس بلیٹن میں بات کریں گے اور پھر دن بھر ان شہروں میں صورتحال رہی کیا، معاملات کیا رہے، کہاں تیز ہوائیں چل رہی تھیں، کہاں کیا صورتحال تھی، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ یہ تو مجموعی طور پر پاکستان کا نقشہ ہے۔ یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی طور پر آپ کے لیے مارک کیا گیا تاکہ آپ کو یہ بتا سکیں، سمجھا سکیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو اس وقت کون آف انسرٹنٹی میں فال کر رہی ہے۔ اب ہم کہاں ہیں، شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ گوادر سے ہمارا آغاز ہو رہا ہے۔ گوادر میں بھی ہماری ٹیم موجود ہے جو کہ آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرے گی۔ لسبیلا بلوچستان کا حصہ، یہاں کیا صورتحال ہے، ہوائیں کتنی تیز ہیں، نقل مکانی کہاں تک پہنچی، یہ بھی بتائیں گے۔ کراچی سے بھی بالخصوص آپ کو بتائیں گے کہ صورتحال ہے کیا، کتنے سائن بورڈز اترے، مخدوش عمارتیں کتنی ہیں، خالی کتنی ہو گئیں، کتنے سے لوگ جو ہے وہ نکلنے سے انکار کر رہے ہیں۔ کراچی سے ہمیں جوائن کریں ہمارے نمائندے محمد سلمان، باقی شہروں کے بارے میں آپ کو پھر فردر بتاتے ہی ہیں۔ سلمان، آپ ذرا بتائیے آپ ہیں کہاں اور دن بھر کراچی میں موسم کیسا رہا؟ تیز ہوائیں چل رہی تھیں، بادل بھی برسے، بوندا باندی ہوئی، بلکہ سراب گوٹ پہ تو مٹی کا طوفان بھی آیا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کا جو کلفٹن کا علاقہ ہے جس کو سی ویو کی نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، یہاں پر ہم موجود ہیں اور اس وقت جو ہے وہ بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ پورے دن تیز ہوائیں جو ہے وہ اس نے گھیرا رکھا شہر کو، اور اگر بات کی جائے گزشتہ 2 روز کی تو شدید گرمی تھی، حبس تھا، لیکن آج حبس ٹوٹا اور اب اثرات نظر آنا شروع ہوئے طوفان کے، اور تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں کہیں بوندا باندی بھی ہوئی۔ اور اگر بات کی جائے انتظامات کی تو انتظامات جو ہے وہ سختی کی طرف اب جا رہے ہیں۔ جو سی ویو کا ساحل ہے وہ رات کے اوقات میں خصوصاً شام سے رات تک جو ہے یہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ، کراچی کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں گرمی میں، خاص پر صرف سناٹے ہیں اور صرف سناٹے ہیں۔ سناٹوں کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر پولیس ہے، ڈی ایچ اے کا عملہ ہے جو کہ لوگوں کو یہاں پر نہیں آنے دے رہا، ڈیفنس کے جو رہائشی ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ انتباہ جاری کیا گیا ہے ڈی ایچ اے کی جانب سے کہ یہ مکانات میرے کیمرہ مین دکھائیں گے یہاں پر ہیں موجود، کہ یہ جو جتنے بھی بینگلوز ہیں ان کے لیے انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ فوری طور پر ان کو خالی کر کے کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے کہ کس قسم کا پریشر اس طوفان کا ہوگا، کتنی خطرناک بارش ہو سکتی ہے، کتنی تیز ہوائیں ہوں گی، اس کے اندازے تو بتائے جا رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ احتیاطی تدابیر گاڑیاں وغیرہ چل رہی ہیں سڑک پہ، بائک پہ لوگ چل پھر رہے ہیں، اس کے ساتھ انہیں جو ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ پچھلے دنوں خبر یہ آئی تھی کہ مجاہد سے یو ٹرن دے کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں خیابان اتحادیہ صبا، یہ تو سڑک پہ گاڑیاں گھوم رہی ہیں۔ جی بالکل، یہ وہ گاڑیاں ہیں جو کہ رہائشی ہیں یہاں کے، جن کے رستے ہی ہیں، وہ پولیس کی نفری چیک کرتی ہے، اپنی شناخت کراتے ہیں اور اس کے بعد جاتی ہیں۔ لیکن اگر عام طور پہ بات کی جائے تو اس وقت یہاں پر جو ہے وہ ہزاروں گاڑیاں موجود ہوتی تھیں، لیکن اب جو ہے وہ اکا دکا گاڑیاں آتی جاتی نظر آتی ہے، لیکن کوئی بھی ساحل کی طرف نہیں جا سکتا۔ لیکن جو اگر بات کی جائے کہ حفاظتی انتظامات کے ساتھ ساتھ شہر بھر میں آج کیا ہوتا رہا، تو شہر میں یہ ہوتا رہا کہ شہر میں سب سے پہلے تو جو ہے مخدوش عمارتوں کو اور بل بورڈز کو جو ہے وہ کہا گیا کہ اتارا جائے، تو بل بورڈز کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پہ اتارا نہیں گیا ہے، پینا فلیکس اس کے اتار کے سوراخ کیے گئے کہ ہوا اس سے پاس ہوگی۔ جو روایتی طریقہ کار ہے پینافلیکس وغیرہ کی جو ہینڈلنگ ہے یا سائن بورڈز کی جو ہینڈلنگ ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں سلمان کہ کس طرح کی صورتحال، اور جو روایتی طریقہ ہے کہ پینافلیکس میں ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے کہ ہوا گزر جائے، لیکن بہرحال اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، کتنا نقصان، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ سمندری طوفان کے خطرے کے پیش نظر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی متحرک ہے، جیسے کہ سلمان بھی بتا رہے تھے کہ مخدوش عمارتوں کو خالی کروایا جا رہا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں کراچی کے ضلع جنوبی اور وسطی میں مخدوش عمارتیں خالی کروانا شروع کر دی گئی ہیں۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ عمارتوں کو خالی کروانے کے بعد سیل بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی مزید تفصیل محمد سلمان کی اس رپورٹ میں آپ جانیے۔ بائپر جوائے کے خطرات، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ متحرک۔ ایس بی سی اے نے کراچی میں موجود انتہائی مخدوش عمارتوں کو خالی کرانا شروع کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ عمارتوں کو خالی کرانے کے بعد سیل کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں 70 انتہائی مخدوش عمارتیں خالی کرائی جائیں گی۔
इंतहाई मखदूश इमारतों को सील करने के बाद इन्हदामी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। हुक्काम का कहना है कि शहर भर में 500 से जायद मखदूश करार दी गई इमारतें हैं। अब तक 48 से जायद इमारतों को खाली करवा कर सील कर दिया गया है। मजीद इमारतों को भी खाली करा लिया जाएगा। मज़ीद इमारतों को भी खाली करवाया जाएगा और शहरियों से अपील की जा रही है सिंध हुकूमत की जानिब से भी कि इन इमारतों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि ये इमारतें खाली करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि हम कहाँ कहाँ हैं इस सारी सूरत हाल में, ज़रा आपको वो बता देते हैं। हमने आपको बताया कि ये लें, गवादर में भी हम हैं, लसबेला से भी आपको कवर कर रहे हैं, कराची से भी हम कवर कर रहे हैं, लेकिन कराची बहुत बड़ा है, तो कराची में फिर हम कहाँ कहाँ हैं, ज़रा इसकी भी फर्दर डेप्थ में चले जाते हैं। ये आ गया आपके सामने कराची के तमाम अजला। अब ओल्ड सिटी एरिया से भी हमारी टीम आपको मुस्तकिल अपडेट करेगी, DHA से भी आपको अपडेट करेगी, CVU से भी आपने देख लिया कि सलमान जो हैं वो हमारे साथ थे। सोराब गोट में भी ये सूरत हाल है कि हमारी टीम वहाँ से मौजूद है, रिपोर्ट करेगी। इब्राहिम हैदरी ये जो है यहाँ से भी हमारी टीम आपको रिपोर्ट करी होगी, और ड्रेग रोड भी आपको रिपोर्ट करी होगी। ज़रा CVU दोबारा चलते हैं ना, सलमान हमारे साथ हैं, CVU पे हैं सलमान, यही बता रहे थे। सलमान बताइए ज़रा कि सूरत हाल है क्या, बताया क्या जा रहा है। ये लें जी, सलमान तो यहाँ आ गए। सलमान बताएं कि सूरत हाल है क्या, अब कल के लिए क्या तैयारियां, आज का दिन तो खत्म हो गया, कल के लिए क्या बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, सख्ती ही सख्ती नज़र आ रही है आने वाले वक्तों में, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो कुछ इसी तरह की है कि मैं आपको बताऊं कि अगर बात की जाए कल क्या होगा, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, लोग जो है ना वो किसी ना किसी तरह ये मंजिले नौजवान पहुँच ही जाते हैं, और यहाँ पर भी ये पहुँचे हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि तूफ़ान है, ख़तरनाक चीज़ है, हुकूमत कहती है कि ना आए साहिल की तरफ, लेकिन आप लोग चले आए हैं, तो किस तरह निकल आए सबसे पहले तो, और क्यों आए? जी बस यही है, हमें भी थोड़ा शौक़ था, हवा चल रही है, थोड़ा मौसम माशाल्लाह तब्दील हुआ कराची के अंदर, और कुछ दोस्तों ने बहुत फोर्स किया आने के लिए, घर वालों से छुप के आए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको तो वो एक छुप रहा है, मेरा दोस्त है पीछे ना। और रस्तों का जहाँ तक बात की जाए वो ये कि वहाँ पे शुरू में पुलिस खड़ी हुई काफ़ी, लेकिन कुछ गलियाँ ऐसी हैं जो 2-3 खुली हुई हैं। इंजॉय करने तो आप कह रहे हैं हम वहाँ निकल आए, छुप के भी निकल आए, अब अगर कोई नुकसान होता है, हुकूमत मना कर रही है, इंतज़ामिया, तो फिर क्या होगा? ये इतनी ख़तरनाक हवा है कि यार मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे हैं, कोई चीज़ निकल के गिरे, फिर कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदारी तो इसकी हमारी, गवर्नमेंट ने भी हमें मना किया हुआ है, लेकिन ठीक है, तो ये मंजिले जो हैं ये पहुंचे हुए हैं, लेकिन बहरहाल ना PNN इससे इंडोर्स कर रहा है, ना ही जो सिंध हुकूमत है वो इसे इंडोर्स कर रही है। इन दिनों में जितना कम से कम घर से निकला जाए वो ज़रूरी है, गैर ज़रूरी तौर पर ना निकला जाए। तो मोहम्मद सलमान हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या थी आपने जानी। सलमान, आपका शुक्रिया। उबैद और सलमान हमें बड़ी तफसील से बिपरजॉय के हवाले से बता रहे थे, और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगी हमें PNN के वर्चुअल स्टूडियो से हिना आदिल खान। समुद्री तूफान जोए तेजी से भारत और पाकिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ रहा है। इस वक्त ये तूफान कराची के साहिल से तकरीबन 373 किलोमीटर की दूरी पर है। हर समुद्री तूफान की तरह बाइपरजॉय का भी एक मरकजी नुक्ता है। इसे तूफान की आंख, आई ऑफ द स्टॉर्म कहा जाता है। यहाँ हवा का दबाव कम है, इसी नुक्ते के गिर्द तूफान घूम रहा है, जहाँ हवा की रफ्तार बहुत तेज है। ये तूफान 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से साहिल की तरफ बढ़ रहा है। आई ऑफ द स्टॉर्म में हवा की रफ्तार 165 किलोमीटर है। आई ऑफ द स्टॉर्म के गिर्द 50 किलोमीटर के दायरे में लहरों की ऊंचाई 32 फीट है। अभी इस तूफान का रुख भारत और पाकिस्तान का सरहदी इलाका रन ऑफ कच्छ और केटी बंदर का दरमियानी इलाका है। पाकिस्तानी इलाके केटी बंदर से इसका फासला तकरीबन 305 किलोमीटर है। वहीं भारतीय रियासत गुजरात की मांडवी बंदरगाह से तूफान के मरकज का फासला 325 किलोमीटर है। जब भी किसी समुद्री तूफान का रास्ता जानने के लिए उसे सैटेलाइट मैप पर देखते हैं, तो वहां तूफान के मरकज, जिसे आई ऑफ स्टॉर्म कहा जाता है, उसके गिर्द और आगे की तरफ एक कोन की शक्ल नजर आती है। मौसमियात के माहिरीन इसे कोन ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं। 67% इम्कान ये होता है कि तूफान का मरकज उस कोन के अंदर ही रहेगा। पाकिस्तान और भारत की तरफ बढ़ने वाले समुद्री तूफान बाइपरजॉय की कोन ऑफ अनसर्टेनिटी की चौड़ाई भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद से पाकिस्तानी सूबा सिंध के शहर कराची तक है, जबकि इसकी लंबाई भारतीय रियासत राजस्थान और पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला रहीम यार खान तक फैली हुई है।
ये तूफान 15 जून को भारतीय रियासत गुजरात के इलाके कच्छ और पाकिस्तानी सूबा सिंध के साहिल कैटी बंदर की दरमियानी इलाके से गुजरेगा। साहिल से तूफान टकराने के बाद समंदर में 8 से 10 फीट की लहरें उठने का इम्कान है और मुतासरा साहिली इलाकों में तूफानी हवाओं से कच्चे घरों को नुकसान पहुंचने और दरख्तों के उखड़ने का खदशा है। वहीं 3 से 4 रोज तक तूफान से मुतासरा इलाकों में बारिशें बरसेंगी। हिना ने बड़ा तफसील से हमें बताया। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बहिरा अरब में बनने समंदरी तूफान बिपरजॉय का सफ़र तेज़ी से सिंध की तरफ जारी है। तूफान के ज़ेर असर इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। समंदरी तूफान की इस वक्त क्या सूरत हाल है और इसका रुख किस तरफ जा रहा है, ये इस हवाले से हमें लुब्ना मुमताज़ रिपोर्ट कर रही हैं। जी बिल्कुल, बहरिया अरब में मौजूद समंदरी तूफ़ान जो है वो कराची से अब सिर्फ 400 किलोमीटर दूर जनूब में मौजूद है, जिसके असरात जो हैं वो सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला पे जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। सुबह से जो है वो तेज़ हवाएं, गर्द व गुबार और झक्कड़ चल रहे हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज महकमा मौसमियात के। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि कितनी बारिशें तेज़ मुतवक्का हैं। जी सर बताइए। तो अभी इसका रुख जो है जिस पॉइंट पर ये मौजूद है, अगर हम नक्शे पे देख सकें तो ये यहाँ मौजूद है इस वक्त। तो इसका रुख अभी कल तक इधर मज़ीद शुमाल की तरफ बढ़ेगा और फिर शुमाल मशरक़ की जानिब इसका ट्रैक हो जाएगा। तो अगले 3 से 4 रोज़ जो हैं उसमें वक्फे वक्फे से बारिश होती रहेगी। जो इंटीरियर सिंध है, सजावल, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, मीरपुर ख़ास और उमरकोट, इन तमाम अज़ला में बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश होगी। जैसा कि सरदार सरफराज ने बताया कि 14 से जो बारिश होगी वो हल्की होगी, लेकिन 15 और 16 को जो है वो हल्की से तेज़ बारिश जो है वो मुतवक्का है कराची में, और इसके साथ साथ तेज़ झक्कड़ भी चलेंगे। जी तो लुब्ना मुमताज़ हमें मेट ऑफिस से रिपोर्ट कर रही थी कि इस तूफ़ान की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। ज़रा हम भी इस बड़ी वॉल का फ़ायदा उठाते हैं, आपको समझाते हैं, दिखाते हैं कि सूरत हाल है क्या। अभी आपको हिना बता रही थी कि ये आई ऑफ स्टॉर्म है और यहाँ से जो सूरत हाल बनती है, इसकी कराची से फासला इस वक्त जो है वो तकरीबन आप कह लीजिए कि 350 किलोमीटर या इसके आसपास कुछ बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम ज़रा डिवाइड कर लेते हैं। ये कराची है, इसके साथ यहाँ पर ठट्ठा है, फिर ये सजावल है, फिर बदीन है। इसमें सबसे पहले अगर लेट्स से ये आर्क इस तरफ मूव करता है तो सबसे पहले ये सजावल को हिट करेगा और साथ ही फिर आप ये इस लाइन के ज़रिए तकसीम हुआ देख रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान को। ये भारत की रियासत गुजरात है, जहाँ पर मांडवी बंदरगाह है और इसके अलावा जामनगर है, दीगर जो शहर हैं वहाँ भी ये जाएगा। गुजरात में तो बल्कि बारिशें भी शुरू हो गई हैं, कराची में भी आज बूंदाबांदी हुई है। साथ ही साथ अगर मैं आपको समझा सकूँ तो ये इस वक्त सूरत हाल जो है वो हवा की है, इर्द गिर्द हवा बहुत तेज़ है। आज कराची में भी बूंदाबांदी हुई है, इसके अलावा यहाँ ठट्ठा में, सजावल में, फिर बदीन में और फिर थरपारकर में भी सूरत हाल ये रही है कि यहाँ पर भी बड़ी शदीद जो है वो हवाएं चलती रही हैं और बारिशें होती रही हैं। इसका ज़रा आपको ये सैटेलाइट व्यू भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तूफ़ान है बिपरजॉय, खला से इसकी बनाई गई एक वीडियो है, सोशल मीडिया पर ये वायरल है और इस वीडियो से तूफ़ान की शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। समुद्री लहरें कई कई फीट ऊंची दिखाई दे रही हैं और वीडियो में तूफ़ान की जो आँख है उसे भी देखा जा सकता है, यानी कि आई ऑफ स्टॉर्म जो जिसकी हम बात कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से, उसको भी इस विजुअल में देखा जा सकता है और ये तेज़ी से बढ़ रहा है अपनी मंजिल यानी कि साहिल की तरफ। समंदरी तूफान बिपरजॉय का पाकिस्तान की साहिली पट्टी से फासला कम हुआ तो असरात भी जाहिर होना शुरू हो गए। कराची में गर्दालूद हवाएं चलना शुरू हो गईं। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहर का दौरा करके बिलबोर्ड्स और बोर्डिंग्स हटाने के अहकाम भी जारी किए हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची के मजीद नजदीक आ गया। फासला कम होने से असरात भी सामने आने लगे। शहर कायद में गर्द आलूद हवाएं चलने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। महकमा मौसमियात का कहना है बहिराए अरब में मौजूद समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची से 360 किलोमीटर और ठट्ठा से 290 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है समुद्री तूफान शुमाल की जानिब बढ़ रहा है। ये कराची के जनूब में मौजूद है, 600 किलोमीटर नीचे समंदर में, और ठट्ठा से उसका फासला 580 किलोमीटर है और उसका फ़िलहाल तक जो ट्रैक रहा है पिछले 48 घंटों से वो शुमाल की तरफ रहा है। कल के बाद जो है ना शुमाल मशरक़ की जानिब उसका इम्कान
आने की डाइवर्ट करेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। सिंध असम्बली से खिताब में कहा, हुकूमत समुद्री तूफान से बचाव के लिए इक़दामात कर रही है। लोगों से अपील है कि जुमेरात और जुमा के रोज खास एहतियात करें। ये रेस्क्यू होगा नॉट व्हेन दी एक बार ये तूफान जो हाई इंटेंसिटी वाला हिट कर जाएगा तो फिर रेस्क्यू नहीं कर सकते, तो पहले करना है वो रेस्क्यू, इसीलिए हम सारी फोकस इस वक्त उसी पे है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, ठट्ठा, बदीन और सजावल से भी लोगों की नक्ल मकानी जारी है। लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, मगर उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अलावा कोई चारा नहीं। पीने का साफ पानी ना रहने के लिए कोई जगह, एक तरफ समंदरी तूफान, दूसरी तरफ बारिशें। सिंध के साहली इलाके सजावल के रहायशी बेहाल हो गए। मुतासरीन का यह कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कोई मदद नहीं की जा रही। वाइपर जॉय की सिंध की जानिब तेजी से पेश कदमी पर सिंध के जिला सजावल के साहिली इलाकों के रिहायशी नई मुश्किल में पड़ गए हैं। साहिली इलाकों में 106 देहात के 50,000 से जायद लोगों को नकल मकानी की हिदायत जारी की गई है, लेकिन उनके रिहायश और खाने पीने के कोई इंतजामात नहीं किए गए। खाधो पीतो ॾिनो बाहर बच्चा विहारियो वेठा अंदर कमरा कोन खोले कमरा चवंदा गवर्नमेंट सामान पे। जिन सरकारी इमारतों में उन्हें ठहराया गया है वहाँ पीने का पानी न सर पर छत है। देखना यह है कि जिला इंतजामिया ने जो वादे किए हैं क्या उन पर पूरा उतरती है या माजी की तरह महज दावे करके आराम से तमाशा देखा जाएगा।